In Jesus' name. Touch Nana, touch Mummy, touch Daddy, touch Mama, touch Chintali. In Jesus' name, I pray. Amen. प्रार्थना सुन के प्रभु ने शमूएल के साथ बातें की। वही प्रभु हमसे बात करेगा। छोटी शमूएल ने प्रार्थना की। Every person is the gift of God. Every person is the gift of God. Wonderful, marvelous gift. Wonderful, marvelous gift. I am a gift. You are a gift. Every person is the gift. A very special gift. Unique in all the world. Every person is a gift. పట్టుకో. యూట్యూబ్ ఏదైనా కానీ నీ ఆత్మకై మేలుకై వాడుకోవాలి. వాట్సాప్ మెసెంజర్ ఏదైనా కానీ దేవుని వాడుకోవాలి. నీ చెవిలో అతి చెప్పగా రిమైండర్లా గుర్తు చేయనా. ఓ అన్నా, ఓ అక్క, ఓ తమ్మి, ఓ చెల్లి అంటూ రిక్వెస్ట్ చేయాలా. యేసయ్యా ప్రేమను మెచ్చిందేమీ లేదంటూ చాటి చెప్పనా. మండే ట్యూస్డే ఏ రోజైనా కానీ దేవుని సన్నిధిని వదలవద్దని. వింటర్ ఏదైనా కానీ దేవుని పనికి ముందుండాలనే. నీ చెవిలో అచ్చి చెప్పడా రిమైండర్లా గుర్తు చేయనా. ఓ అంకల్, ఓ ఆంటీ, ఓ తమ్మి, ఓ చెల్లి అంటూ రిక్వెస్ట్ చేయాలా. యేసయ్యా ప్రేమను మించిందేమీ లేదంటూ చాటి చెప్పనా. ఫీవర్, కాఫ్ అండ్ కాఫ్ ఏదైనా కానీ దేవుని స్తుతించడం మానవద్దని. కోపం, ఆనందం ఏదైనా కానీ దేవుని అనవద్దని. నీ చెవిలో అచ్చి చెప్పనా రిమైండర్లా గుర్తు చేయనా. ఓ తక్క, ఓ తమ్మి, ఓ చెల్లి అంటూ రిక్వెస్ట్ చేయాలా. యేసయ్యా ప్రేమను మించిందేమీ లేదంటూ చాటి చెప్పనా. Thank you. Greetings everyone.
I would like to share with you a very short summary of the book of Genesis. The genre of Genesis is narrative history and genealogies. It was written by Moses about 1450 BC. Key personalities include Adam, Eve, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, and Joseph. This book was written to record God's creation of the world and to demonstrate His love for all what He had created. Genesis is the first book of the law and also the first book of the entire Bible. The name Genesis literally means in the beginning. It explains the actual events of one of the most debated subjects of our current day, the origin of life. Genesis describes the Lord God who is infinite and all-powerful, creating everything that exists by the power of His spoken word out of nothing. He essentially creates material matter out of non-material nothing. This is a very short summary of the book of Genesis. Thank you very much. इसकी खुशबू लाजवाब है। ये मेरा भाई आया है हमेशा की तरह खाली हाथ। भाई तुम क्या बना रहे हो? क्यों, क्या तुम्हें आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं, पशु चालाक हो गए हैं। वो मेरी आवाज सुनकर ही भाग जाते हैं। ओह, तो क्या उन्हें वहीं खड़े रहकर तुम्हारे तीर चलाने का इंतजार करना था? तुम बेवकूफ हो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं कल हिरण का शिकार करूंगा। क्या? तो तुम सोचते हो कि हम कल उत्सव मनाएंगे? वो कल की बात है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम क्या बना रहे हो? ये कुछ नहीं, सिर्फ दाल बना रहा हूं। खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे कुछ खाने को दो, कल से कुछ नहीं खाया है भाई। तो तुम्हें कोई जानवर का शिकार करना था ना? भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो। ये हमारे लिए है। सही में भाई बहुत भूख लगी है। ये दाल दे दो और तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। अच्छा, तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? हाँ, तुम कुछ भी मांगो। तुम्हें घोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे घोड़े और ऊंट नहीं चाहिए। मैं हाँ भाई बोलो, क्या चाहिए आपको? तुम चाहो तो ये सारी दाल ले सकते हो, पर तुम मुझे पहलौठा होने का अधिकार दोगे? पहलौठे का अधिकार? बस इतना ही? मुझे पता है भाई तुम मूर्ख हो। तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा मेरे पहलौठा होने पे? हाँ, मैं तुम्हें पहलौठे होने का अधिकार दे दूंगा। ठीक है, फिर तुम सबसे पहले ईश्वर की शपथ लो, तो फिर तुम ये दाल ले सकते हो। ठीक है, मैं इब्राहिम और इसहाक के ईश्वर की शपथ खाता हूँ। मैं याकूब को पहलौठा होने का अधिकार देता हूँ। भाई अब तो दाल दे दो। ये लो। वाह, बहुत अच्छी है। और इस प्रकार एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें कमजोर हो गई। उसे ज्ञात नहीं था कि वो ना जाने कब तक जीवित रहेगा। कौन है वहां? क्या तुम हो एसाव? नहीं, मैं हूँ प्रिय। रेबेका, मेरी प्रिय, यहाँ आओ। क्या बात है प्रिय? रेबेका, मुझे लगता है मेरे मरने का समय निकट आ रहा है। मुझे एसाव से बात करनी है। चिंता मत करो प्रिय, मैं अभी बुलाती हूँ। पिताजी, मैं अंदर आ जाऊं? ओह, तुम यहाँ हो। आओ मेरे पुत्र। क्या आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ, मैंने बुलाया है। यहाँ आओ। कहो पिताजी। एसाव, मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है, किंतु मेरी एक इच्छा है। आप कहिए, आपको क्या चाहिए?
तुम मेरे लिए एक शिकार कर स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाओ। जी हाँ, बिल्कुल पिताजी, मैं शाम तक आपके लिए लेकर आता हूँ। धन्यवाद मेरे पुत्र। मैं जानता हूँ कि तुम लाओगे और उसको खाने के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। धन्यवाद पिताजी, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ। नहीं, ये आशीर्वाद याकूब को मिलना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। याकूब, याकूब। माँ, क्या हुआ है? आप दौड़ क्यों रही हो? हाँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई। हाँ, क्या हुआ है एसाव को? नहीं, तुम्हारे भाई को शिकार के लिए भेजा है। किसने? तुम्हारे पिताजी ने, और स्वादिष्ट भोजन खाकर वे उसे आशीर्वाद देंगे मरने से पहले। हाँ। अरे नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं माँ? याकूब, मेमना लेकर आओ। मेमना? आप क्या करने जा रही हो माँ? जल्दी लाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे माँ, मैं मेमने को ले आया। अब आप क्या करेंगी? तुम इसे साफ करो, मैं इसे पकाती हूँ। और तुम इसे लेकर अपने पिताजी के पास जाना। और वो मुझे अपनी दुआएं देंगे। वाह, क्या तरकीब है। पर हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि एसाव आ जाए। पर माँ, कहीं पिताजी ने मुझे पहचान लिया तो? मेरा शरीर रोएदार नहीं है, वो तो एसाव का है। जो मैं कहती हूँ करो, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बकरे का चमड़ा फेंकना नहीं, वो हम तुम्हारे हाथ और गले पर पहनाएंगे। अब एसाव के कपड़े पहन लो। ओफो, कितनी बदबू आ रही है। इसमें तो पसीने और पशु की बदबू है। और अब तुम्हें से भी आएगी। अपने हाथ आगे करो और इन्हें पहन लो। ये तुम्हें रोवेदार बनाएंगे। आपको लगता है कि भेड़ का चमड़ा उन्हें मूर्ख बना पाएगा? हाँ, ये भोजन लो और आशीर्वाद प्राप्त करो। और हाँ, गहरी आवाज में उनसे बात करना। हे ईश्वर, कहीं पिताजी मुझे पहचान ना ले। कौन है यहाँ? पिताजी, मैं हूँ, आपका पहलौठा बेटा एसाव। मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। क्या सचमुच? तुम्हारी आवाज याकूब की लग रही है। क्या तुम अपना हाथ मुझे दोगे? मैं याकूब नहीं हूँ, मैं एसाव हूँ। देखिए। हाँ, तुम्हारा शरीर रोएदार है। तुम एसाव हो, परंतु तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये ईश्वर की मर्जी है, जो उन्होंने मुझे इतनी जल्दी आपके पास भेज दिया। ये लीजिए आपका भोजन। ये लीजिए पिताजी आपका भोजन। हाँ, लाओ, ये मेरा आखिरी खाना है। थोड़ा और लीजिए ना पिताजी। हाँ, हाँ, हाँ। पिताजी, आपने आशीर्वाद का वचन दिया था। मेरे पास आओ मेरे बेटे। ये गंध मेरे पहलौठे की है। इब्राहिम का ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, राष्ट्र तुमको दंडवत करें और तुम अपने सब भाइयों के स्वामी कहलाओ। शुक्रिया पिताजी, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ। पिताजी। कौन है वहां? मैं एसाव हूँ पिताजी, आप उठिए और खाइए। क्या एसाव? मैंने अभी खाया है और तुम्हें आशीर्वाद दिया है। क्या पिताजी? पर मैं तो अभी शिकार लाया हूँ। तो वो कौन था जो थोड़ी देर पहले भोजन बनाकर लाया था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैंने भोजन खाया और उसे आशीर्वाद दिया। नहीं। ओह, मुझे उसकी आवाज सुनकर समझना चाहिए था। वो याकूब होगा। ओह, तुम्हारे भाई ने धोखे से आकर तुम्हारा आशीर्वाद छीन लिया।
उसका नाम याकूब ठीक ही तो रखा गया था। उसने पहले तो मेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझसे छीन लिया और मेरे लिए आशीर्वाद भी नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो मेरे पुत्र, अब उसके समान आशीर्वाद नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। मेरे पिताजी के मरने के बाद मैं याकूब को मार प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लेसन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। सभी आंखें बंद कीजिए। हे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आपको फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ, अच्छा सा मौका दिया आपकी बातों को बताने के लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर बैठे सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। उन बच्चों को अच्छा मन, अच्छा बुद्धि, अच्छा आरोग्य देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, और जो भी सुन रहे हैं उन बातों को न भूलने जैसा अच्छा मन देने के लिए आपसे विनती करती हूँ। और आगे का समय आपके हाथों में सौंप कर ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ले पिता, आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप सब ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छी अच्छी बातों को जाना है। तो आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक में जाते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिसिट। डिसिट का मतलब है कपट करना। तो बच्चों, कपट क्या होता है आप सब जानते हो? कपट कहाँ से आया, कपट कहाँ से आता है, कपट क्या है ये जानते हो? तो बच्चों आज हम जानेंगे। तो बताओ बच्चों, कपट को किसने देखा है? नहीं ना। तो कपट दिखता नहीं है, कपट बुरे लोगों के मन में होता है, जो दिखता नहीं है। जो लोग बुरा सोचते हैं ना, उनके मन में कपट होता है। आप जानते हो बच्चों, कपट से पाप होता है, और पाप करने से दूर रहना है हमें। तो कपट का मन हमारे अंदर नहीं रहना है। तो हम देखते हैं कुछ लोग ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर ढेर सारा कपट भरा हुआ होता है। तो कपट से भरा हुआ लोगों को क्या कहते हैं? कपटी लोग कहते हैं। ऐसे कपटी लोगों से हमें दूर रहना है। और कपटी लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने नहीं देते। तो बच्चों, परमेश्वर ऐसे कपटी मनुष्य से घृणा करता है। बच्चों, हम किसी से भी कभी भी अगर कुछ भी मांगे तो वो लोग कपटी मन से देते हैं, तो हमें नहीं लेना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। और कपटी जीभ से भरा हुआ लोगों से हमें दूर रहना है। बच्चों, कपट से भरा हुआ मन से बुरा काम होता है, पाप होता है। तो इसीलिए अच्छे और साफ मन से हमें बात करना है, प्रेम से रहना है, प्यार से रहना है। जिस तरह यीशु मसीह ने किया, प्रेम किया, प्यार किया। आप सब जानते हो ना बच्चों, यीशु मसीह का प्यार कितना अनोखा है। यीशु मसीह का प्यार बहुत अनोखा है। सभी लोगों से प्रेम से बात किया है। यीशु मसीह के मन में कभी कपट नहीं था, कभी उनके मुंह से कभी कपट की बातें नहीं निकली। यीशु मसीह निष्कपटी था, तो हमें भी यीशु मसीह की तरह निष्कपटी होना चाहिए। हमारे अंदर कपट नहीं रहना है। कपट से पाप होता है, तो पाप करने से हमें दूर रहना है। तो बच्चों, हम बाइबल में से एक लेसन को देखते हैं। इज़राइल लोग जब मिस्र देश में फिरौन राजा के गुलाम थे, गुलामी से बचने के लिए परमेश्वर ने मूसा और आरोन को भेजा। किसे भेजा बच्चों? मूसा और आरोन को। लेकिन फिरौन राजा उनको छोड़ना नहीं चाहता था। तो परमेश्वर ने मूसा और आरोन को बोला, फिरौन राजा को जाकर बोलो, अगर तुम मेरे प्रजा को नहीं छोड़ोगे तो मैं डांसों का झुंड को बेच दूंगा। मतलब फ्लाइज को, मतलब मक्खी को बेच दूंगा। तो
और मक्खी को बेचकर, डांसों का झुंड को बेचकर मैं नाश कर दूंगा। तो फिरौन राजा मूसा और आरोन को बुलाकर बोलता है, तुम्हारा परमेश्वर को बलि देकर डांसों का झुंड को निकाल दो। फिर मूसा और आरोन बोलते हैं कि हमारा प्रजा को छोड़ दो, हम जंगल में जाकर बलि देंगे। फिरौन राजा बोलता है, नहीं, यही मिस्र देश में ही बलिदान दो। लेकिन मूसा और आरोन बोलते हैं कि हमारा प्रजा को छोड़ दो, हम परमेश्वर जैसा हमसे 3 दिन के मार्ग में कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो फिरौन राजा बोलता है, जंगल में ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, फिर वहाँ जाकर मेरी विनती करना। तब मूसा ने कहा, मैं तेरे पास बाहर जाऊंगा, वहाँ जाके विनती करूंगा आपके लिए, आपके कर्मचारी और आपकी प्रजा के लिए, वहाँ के झुंड को निकाल देने के लिए मैं विनती करूंगा। तो फिर मूसा फिरौन से बोलता है, अपने अंदर कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने जाने के लिए मना न करे। आखिर मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार डांसों के झुंड को फिरौन और उसके कर्मचारी और उसके प्रजा से दूर किया। यहाँ तक भी एक भी डांसों का झुंड वहाँ नहीं था। तो बच्चों, हम देखते हैं कि यहाँ फिरौन राजा के मन में कपट था, कपट के मन से उनको भेजा। तब फिरौन ने एक बार फिर अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने नहीं दिया। तो बच्चों, हम इस लेसन में देखते हैं कि फिरौन राजा के मन में इजराइल लोगों के प्रति क्या था? कपट था। तो कपट से भरा हुआ मन नहीं रखना है, यह लेसन हमें सिखाता है। तो आज का लेसन यही समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आपको फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ, इतना अच्छा मौका दिया आपके बातों को बताने के लिए। सुनने वाले हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अच्छी बुद्धि, ज्ञान, समझ देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रेम से भरा हुआ मन को आपको देने के लिए मैं आपसे मांगती हूँ। कपट से भरा हुआ मन को निकाल देने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि कपट पाप का एक मार्ग है पिता परमेश्वर। इस पाप करने से हमें बचाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपकर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ले पिता, आमीन। तो बच्चों, आज हम मेमोरी वर्स याद करेंगे। तो आज का मेमोरी वर्स है पहला पत्रस 2 अध्याय 22वां वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 22वां वचन। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 1 Peter chapter 2 verse 22। 1 Peter chapter 2 verse 22। He committed no sin and no deceit was found in his mouth. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. Thank you.